even know how I feel about Sydney Sweeney selling her bath water. Because men are going to be objectifying her regardless of what she does. It's not like she has any control over how they view her, right? So should she just start wearing more clothes and covering up completely so they stop objectifying her? No, that's not going to work because they're still going to objectify her. Plus, if she starts covering herself up more and wears clothes according to men so that they don't objectify her, she's still dressing up for men technically. And her selling bathwater by capitalizing on them objectifying her is actually her profiting off of them objectifying her, which puts her in a good place kind of. But she's also encouraging them to objectify her further. Like, being objectified is always without your consent as a woman. So in this case, she's actually giving consent and being more in control of the objectification. So in that sense, it's not as bad. I don't know. This is very confusing. I don't know what to think. Okay, this is actually not as confusing and complicating. You are complicating it far, far, far more than what the whole fucking thing is. Let's do one thing. Let's look at her video. ताकि हमें context मिले हम बात किसकी कर रहे हैं, and then we'll listen to what awkward Bakri is saying. ठीक है? This is Sydney Sweeney's video. Oh, you dirty little boys. Hey! Sit in my body. Wash. Well, you can't have it. Because this isn't for boys. It's for men. This is Dr. Squatch Natural Body Wash. With long-lasting natural aromas like wood barrel bourbon, pine tar, coconut castaway, and fresh falls, you'll finally get the attention you deserve, dirty little boy. Let's play Awkward Goat's video again now. I don't know how I feel about Sydney Sweeney selling her bath water. Because men are going to be objectifying her regardless of what she does. It's not like she has any control over how they view her, right? So She does. People do. I would say it's far more complex than how you're saying it. There is going to be always a section of people who may, but then there is always a large section of human beings who are reasonable people, Homo economicus, and they want to understand people and they have self-control as well. So अगर आप जैसे भी अपने आप को चाहते हो view करवाना, there is always going to be a percentage, a ginormous percentage I would think, who would want to see you as you are, because there's plenty of very, 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 very beautiful women who are in places जहाँ पे let's say जो वो दुनिया को दे रहे हैं वो intellectual in nature है और लोग उनको वैसे ही receive कर रहे हैं, लोग उनकी respect कर रहे हैं. बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट हो गई, बहुत सारी साइकाइट्रिस्ट हो गए, न्यूरो साइंटिस्ट हो गए. तुम्हारी डॉक्टर रेचल बार है, आई थिंक वो न्यूरो साइंटिस्ट है, वो अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती है. एंड आई थिंक शी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, बिकॉज अगर आप उसके कमेंट सेक्शन से उसको भी देखोगे तो टू अ ग्रेट डिग्री आपको मिलेगा ऑलमोस्ट आई वुड से 70-60-82% समथिंग मिलेगा, जहां पे लोग मेन आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन हर टेक्स ऑन न्यूरो साइंस. एंड ऑफ कोर्स then there is always 20% जो हो सकता है उसको ऑब्जेक्टिफाई करना चाहें, एंड वो जो दुनिया को देना चाह रही है वो उन्हें रिसीव नहीं करना. श्योर. सो मैं ही नहीं कहूंगा चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं कि मेन पहले ऑब्जेक्टिफाई करेंगे औरतों को राइट ऑफ द बैट. हम कहीं कोई नुआंस, कॉम्प्लेक्सिटी, ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी, समझदारी, कंपैशन, एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, मैच्योरिटी, हम ऐसे एक्ट करेंगे, अपना सेंटेंस ऐसे फ्रेम करेंगे, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती. ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स है. मैं चूज करता हूं मेरा व्यू क्या होगा किसी इंसान के बारे में. जस्ट बिकॉज मैं आदमी हूं तो नेचुरली आदमी होना ये डिसाइड नहीं कर देता कि अब मैं ऐसा ही एक्ट करूंगा और हम सब एक मोनोलिथ या गाय की तरह हैं और हम सब का व्यू यही है. नहीं यार, क्योंकि तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है, तुम्हें पता है भाई सिचुएशनल फैक्टर्स भी होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, सोशल इंटेलिजेंस होती है, अपब्रिंगिंग होती है, चाइल्डहुड जो हो गया, किस घर में मैं पैदा हुआ हूं, इस घर में मेरे को क्या सीख दी गई है, क्या सिखाया गया है, उस घर में मेरी माँ को देखना कैसे सिखाया, मेरी बहन को देखना कैसे सिखाया है, औरतों को देखना कैसे सिखाया है, मेरी माँ के पास कितनी इक्वालिटी थी, कितनी पावर थी, कितनी स्ट्रेंथ थी, कितनी रिस्पेक्ट थी, वो फाउंडेशन बन जाती है औरतों को देखने की. और उसी घर में जहां पे भाई औरतों को शायद सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ देखा गया है, माँ के पास इतनी राइट नहीं थी, पिताजी ने हमेशा ऑप्रेस किया या फिर उनको नीचे रखा, या फिर वाला घर जहां पे माँ पिताजी को ऑप्रेस कर रही थी, पिताजी पे ताने कसते रहती थी, पिताजी को रेजिन बना दिया, पिताजी को जीते जागते हुए रेजिन बने हुए थे. तो हर घर में आप एक चीज देखोगे, जो भी डायनामिक्स होते हैं वो काफी हद तक शेप करते हैं हमारा एपिस्टेमोलॉजी, उस चीज को देखने का नजरिया भी. तो चीजें इतनी सिंपल नहीं है. मैं कहूंगा कि पहली चीज फर्क पड़ता है ऑब्जेक्टिफिकेशन में भी. इंसान के कर्म क्या है, इंसान का मैसेज क्या है, इंसान की इंटेंशन क्या है. इंटेंशनैलिटी एंड मोटिवेशन मैटर्स अ लॉट. तुम ये नहीं कह सकते कि मर्द इन जनरल मुस्कान करिया और एक न्यूरो साइंटिस्ट
जो न्यूरोसाइंस के बारे में बातें कर रही है, उनको हम ब्लाइंडेड हैं डिफरेंशिएट करने में दोनों में। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है और वो बात कर रही है हार्ट हेल्थ के बारे में, तुम कह रहे हो कि सारे मर्द उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। I don't think so. I think you just thinking कि मर्द ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, औरत के पास चॉइस नहीं होती. I think that's not true. Actions also imply the messages you send, what you communicate. मुस्कान करिया जब पूरा के पूरा कंटेंट आपका अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करने का ही है, you send out a very active message as well कि this is how you're supposed to see me by the way. अगर आपको मुझे पैसा देना है तो आप मेरे को ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए पैसा दे रहे हो, आप मांग रहे हो लोगों से, डिमांड कर रहे हो कि मुझे अपना पैसा दो in return of, in lieu of objectification only. So there is a great message of self-objectification there. in मुस्कान करिया का केस हो गया इंडिया के टेम्पलेट में। और एक कार्डियोलॉजिस्ट न्यूरोसाइंटिस्ट को, मैं ही नहीं कह रहा कि भाई देयर इज अ सेक्शन जो उनमें भी थरकीपना है, बदतमीजी ढूंढेंगे, मैं ही नहीं कह रहा, मैं मानता हूं होगा, और मैं कहूंगा उसमें भी हो सकता है एक स्पेक्ट्रम हो, इन द सेंस हो सकता है भाई कि आप उनको देखें 70% आपके लिए रिस्पेक्ट आती है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस पे, उन पे एडमिरेशन आती है, और 30% आप काइंड ऑफ यू आर ऑल्सो लुकिंग एट देम एंड थिंकिंग वाओ शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। दैट मे ऑल्सो एग्जिस्ट, जहां पे अगेन आप के पास चॉइस होती है कि आप कौन सा, आपका डोमिनेंट विचार क्या है इस इंसान के बारे में, डोमिनेंट फीलिंग क्या है कि हाँ यार अट्रैक्टिव है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूं, शी इज अट्रैक्टिव बट येट I admire her more as a person and I love this combo that I am also attracted to her. I think Sydney Sweeney के example में she's objectifying herself. We just watched the same ad in which she's not only objectifying herself, she's properly capitalizing. She just start wearing more clothes and covering up completely so they stop objectifying her. Should she start wearing more clothes and covering herself more so men stop objectifying her? Shouldn't this conversation exist if that's what she wanted? सिडनी स्वीनी के पास आई थिंक 20 पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं। शी वर्क्स इन हॉलीवुड, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फ्री पर्सन ऑन द प्लैनेट। बुलंद है, उसको जो करना है वो कर सकती है। आई एम प्रीटी श्योर शी हैज द पावर। अगर उसको लग रहा होता ओह ये एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, दिस इज अ प्रॉब्लम एरिया वेयर आई डोंट वांट टू बी ऑब्जेक्टिफाइड, वन शी कैन लिटरली वॉइस इट. She can just go on Instagram, she can tell it. She can write it, she can go to interviews, she can do podcasts, she can talk to millions of people directly. I understand movie roles. Movie roles में चलो ठीक है, तुम acting कर रहे हो, वो story की मांग है, मैं वहाँ पे बात भी नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about so many other things जहाँ पे she plays herself up as a sexual object. I think SNL की बात थी, जहाँ पे तुम्हारी रिपोर्ट्स आई थी SNL शो में. I think it was Sydney Sweeney जिसने, जो SNL कास्ट मेंबर से, उन्होंने बताया था कि she wanted to be objectified. So there you go. This is, I think, BuzzFeed.com. After backlash over how she was objectified, Bowen Yang, I think is SNL cast member hai, said Sydney Sweeney begged SNL writers to include jokes about her boobs. My point is, I don't think that's a problem for her. In conclusion, I think you're providing solutions to things. यानी कि क्या उसको अपने कपड़े पहनने चाहिए और अपने आप को कवर कर लेना चाहिए? These are solutions to a problem that I don't think is a problem for her. क्योंकि जहां तक हमें दिख रहा है, एविडेंस कह रहा है, वो उसको अपॉर्चुनिटी का देखती है, वो एक्चुअल में एम्ब्रेस कर रही है कि भाई मेरे को लोग ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वो पोज करती है दबा के, नॉट ओनली दैट, वो उसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स बना रही है. No, that's not going to work because they're still going to objectify her. Plus, Okay, there is a tone in your reel, suggestive quality है आपके मैसेज में, जहां पे वो तो वो करेंगे ही, जैसे कि ये विक्टिम है, सिडनी स्वीनी विक्टिम है, और ये हैं जो असली में कर रहे हैं, और वो बेचारी क्या करना चाहिए उसको मुझे समझ नहीं आ रहा. Even though she's an equal participant, she likes to be objectified. There is evidence that she goes to TV shows and everything and tells people, writers, to write content जो objectify करेगा उसको. So she's furthering that. She's an equal participant of that. She doesn't mind कि उसके बहुत सारे millions of followers हैं जो उसको objectify करते हैं. I think she enjoys that. Maybe उसका kink होगा. Who knows? Maybe she knows she's making great money off of that. Maybe she knows कि भाई sexual beauty की window होती है 10 साल. 30 के बाद she'll be replaced by somebody else. 35 के बाद maybe nobody would care about her. From the point of view of sexual beauty, and as an actor, talent, art, वो तो भाई timeless है, endless है. She'll be performing even when she's 70. My point is, maybe काफी लोग को पता होता है कि भाई हमारे पास ये एक फेज है, एक विंडो है sexual attention की, and भाई मैं उस पर capitalize कर रही. Maybe she's one of those people. I think the prism by which you're looking things are कि victim, victimizer. And I think from seeing humans as either victim or oppressors, you need to see humans as personalities. You have to see who this person is and maybe see through their actions, intentionalities and motivations कि ये क्या चाह रहे होंगे और ये क्या करना चाह रहे होंगे.
हमें थोड़ा फ्लूइड होना चाहिए जिंदगी में अगर हम एनालाइज करने वाले सिचुएशंस को, कि उनको हम इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे उनके बारे में कमेंट्री ना लिखें और हम उस इंसान की पर्सनालिटी, सिचुएशन, ह्यूमन नेचर, इन सब चीजों को हम ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं जैसे वो चीजें हैं ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि भाई मेन में जायंट पोर्शन नहीं है जो ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते होंगे, मैं ही नहीं कह रहा यार, बट यहां पे आपको देखना पड़ेगा कुछ लोग हैं, मुस्कान करिया हो गया, सिडनी स्वीनी हो गई, who probably enjoy it, who are capitalizing on it. They are not victims. Same way में OnlyFans जो लड़कियां कर रही हैं, they are capitalizing on objectification. Starts covering herself up more and wears clothes according to men so that they don't objectify her. She's still dressing up for men technically, and her selling bathwater by capitalizing on them objectifying her is actually her profiting off of them objectifying her, which puts her in a good place kind of. But she's also So profiting, I think she's a multi-millionaire already. And फिर यहाँ पे हम मॉरल आर्ग्यूमेंट में आ जा रहे हैं कि ये ओनली फैंस पे हम सेम आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं कि अगर कोई भी लड़की 19-20 में ओनली फैंस अकाउंट खोल लेती है और ऑब्जेक्टिफिकेशन तो एग्जिस्ट करता ही है, तो अगर हम ऑब्जेक्टिफिकेशन को यूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, इज दैट अ गुड थिंग? That's a different question, right? And it's a very, very broad conversation. encouraging them to objectify her further. Like being objectified is always without your consent as a woman. So in this, You should try to remove words like always. तुमने कहा कि being objectified is always without the consent of women. Here she is giving consent. She literally made an ad. Let's watch it again. Dirty little boys. Are you interested in my body? Consent. You just said objectification happens always without the consent of the woman. Here it's happening with the consent of the woman. She wants it. She's on the contrary selling products based on knowing the fact कि भैया हाँ I am sexually desired. Similarly, OnlyFans models या कोई भी लड़की जो sexual pictures डाल रही है अपनी body की, that's consent. तुम अगर पब्लिक प्रोफाइल पे अपनी पूरी बॉडी की पिक्चर्स डाल रहे हो जो सेक्सुअल इन नेचर है, अगेन मैं ये नहीं कहूंगा, इस पे भी अच्छा खासा ग्रे एरिया है। काफी पिक्चर्स हो सकती हैं जहां पे एक इंसान सिंपल बीच पे गया हुआ है, उसने बिकिनी पहन रखी है, जो भी पहन रखी है, बट वो सेक्सुअल पिक्चर नहीं है। बहुत सारे कल्चर्स में ये बहुत नॉर्मल चीज होती है, वहां पे मे भी इंसान एक्चुअल में नॉर्मल पिक्चर डाल रहा है क्योंकि उनके लिए नॉर्मल चीज है। वो जब छोटे से बच्चे थे तब से आज तक उनकी जिंदगी में जो भी एज है, उन्होंने हमेशा जब भी बीच में गए हैं, उनके घर वालों ने, सब ने, तो उनके कल्चरली वैसे ही कपड़े पहने गए हैं, तो वो उसको सेक्सुअली नहीं देखते। वैसे काफी कल्चर्स में, वेस्टर्न कल्चर्स में आपको ये चीज नॉर्मली दिखेगी। मैं कह रहा हूं उन पिक्चर्स में जहां पे जानबूझ के इंसान पोज वैसे कर रहा है जहां पे उसके सेक्सुअल फीचर्स हाईलाइटेड हैं, इंसान होंठ बाइट करके और सेक्सुअल पोजेस दे रहा है, और फिर आप उसके लिंक पे जाते हो, वहां पे आपको ओनली फैंस का पेज भी दिखता है। मैं उधर की बात कर रहा हूं, वहां पे कंसेंट है। सो ऑब्वियसली थिंग्स आर फार मोर कॉम्प्लेक्स देन कि मेन विदाउट कंसेंट हमेशा ऑब्जेक्टिफाई करते रहते हैं। नहीं यार, क्या काफी मेन अनवारंटेड ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग में करते हैं, और उनको लेकिन बिहेव करना आता है, और उनको सेल्फ कंट्रोल भी आता है, उसको अपने बिहेवियर में लेके नहीं आएंगे, और बिहेवियर में हमेशा तहजीब होगी, रिस्पेक्ट होगी, सम्मान होगा। क्या ये भी एग्जिस्ट कर सकता है? यस, क्योंकि ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स है। आप अपने मन में एक्चुअली किसी को बहुत अट्रैक्टिव फाइंड कर सकते हैं और आपको देख भी सकते हैं, हो सकता है सेक्सुअली की लाइक, बट आप बिहेवियर में कंप्लीटली तमीज से बिहेव कर सकते हैं, बाउंड्रीज रख सकते हैं, कभी भी कोई भी अपनी हद पार आप नहीं करेंगे। ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स होता है। सॉरी, यहां पे प्रश्न आता है, क्या थॉट भी क्राइम है? सोचने में भी क्राइम है? अब हम यहां पे आ गए तो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हम फिर 1984 वाली जगह पे जा रहे हैं जहां पे थॉट क्राइम्स के लिए इंसान को पनिश करो। बिहेवियर is what people respond to. Behavior is what people notice. Behavior is what sets your character in the eyes of the world. अगर आप behavior में repeatedly through and through dignity के साथ लोगों के साथ deal करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, क्वालिटी होती है, कंपैशन होती है, तो भाई आपके थॉट्स के बारे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो आपकी जिंदगी आपके खोपड़िया के अंदर हो रहे हैं एग्जिस्ट। द सिनेरियो इज दैट इट्स हर बाथ वाटर जिसमें वो naked है, and this is her idea by the way. Men haven't made this happen. she's actually giving consent and being more in control of the objectification. So in that sense, it's not as bad. I don't know. This is very confusing. I don't know what to think. Yeah, it's called rigidity, and this is just an opinion. I apologize if you're not. You're very rigid in your ways of thinking about women and men. I think you see things as very black and white, and variation या किसी भी तरह का deviation जब आता है, और तुम्हारी जो तुमने set पैरामीटर्स और डेफिनेशंस कर रखी हैं, अगर वो अप्लाई नहीं हो पा रही, यूर लाइक मुझे कैसे सोचना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सिचुएशन है उसके पैरामीटर्स उस सिचुएशन के क्या हैं, उनको एग्जैक्टली वैसे देखो, और मे बी अपने देखने के नजरिए को और ब्रॉडन करो। मे बी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी भी ले आओ उसमें, मे बी डार्क ट्रेड्स भी इंट्रोड्यूस करो। डार्क ट्रेड्स जो मेन और वुमेन दोनों में होते हैं बाय द वे। सिर्फ मेन
डार्क ट्रेड्स लेके बैठे हैं, मेन ही सिर्फ गलत चीज कर रहे हैं, मेन ही सिर्फ खराब है, उन्हीं का नजर गंदी है. दिस इज अ वेरी स्टूपिड जनरलाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, एनी ग्रुप. नुआंस लाओ. मैन ही कर रहे हैं, एंड वो काइंड ऑफ विक्टिम है, तो उस विक्टिम को क्या करना चाहिए, अपने आप को और कवर कर लेना चाहिए, या फिर वो अगर कैपिटलाइज करी तो ये अच्छी चीज है. She's not a victim. She's one of the most strong people on the planet. She's one of the most privileged people on the planet. She's a multi-millionaire, first of all. She's famous as hell. She's living in one of the most free countries on the planet. She has power. This is autonomy. Her choosing to sell this, कोई नहीं कह रहा उससे. She's a multi-millionaire. Movies में करके भी she's already making millions and millions of money.